This is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSI and JF or Sciences. So today on the special request of Raja, I am going to discuss about bathymetry. Okay, this video is gonna be really helpful to you. It is something out of the box. Okay, so we'll see that one. But before that, I like to introduce my website, that is orthoholicacademy.com. Here you will get everything regarding CSR. So have a look on this. Okay, in few days the price will rise because we are going to launch something extraordinary on our website. So have a look. Okay, now before starting the bathymetry, I want to show some data, some facts. Okay, so this is the list of people who descended to the Challenger Deep. Challenger Deep is basically a part of Mariana Trench, and where the depth is around 11,000 something, around 11,000 meters. Okay, so this is the list of peoples who descended to the Challenger Deep. Okay, so this is the list of the peoples who walked on the moon. Okay, so around 12 peoples have been walked till now. Neil Armstrong is the first one. Like that, 12 peoples. Okay, if you see this most distant space probe till now is Voyager 1. It basically covers the distance of 152.2 astronomical unit distance. 1 astronomical distance मतलब distance between sun and moon. Okay, so ये 152.2 astronomical unit cover कर चुका है. Okay, now let's see the most distant galaxy ever discovered by NASA on the Hubble Space Telescope is basically, here we can see it captures the light which comes from 13.4 billion years ago. The age of universe is 13.7 and it captures the light of 13.4 billion years old. Matlab it can see history of our space up to 13.4 billion year, when the universe was only 3% of current age. So we have this much of technology right now. But why I am talking about this? But till now, our oceans are unexplored. We are only explored 10%, up to 10% of our ocean with high resolution data. Okay, so this is the thing that's why I am discussing about all these facts. Right now we know more about Mars, we know more about Venus, our own moon, but what about oceans? They are less discovered yet, and that's the reason why there is more scope in oceanography. So जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ वेनस, मून, इवन मार्स, वी हैव नाउ मोर डेटा, मोर डिटेल्ड एनालिसिस. मैपिंग उनका सटीक हो चुका है. उनका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के डेटाज अवेलेबल हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डीप ओशंस, वी हैव नथिंग लाइक दैट. क्यों क्यों आज तक मरियाना ट्रेंच में बहुत कम लोग गए हैं? माउंट एवरेस्ट पे 1000 लोग चले गए हैं. स्पेस में ज़्यादा लोग जा चुके हैं देन मरियाना ट्रेंच. अभी भी राइट नाउ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग हैं. ऐसा क्यों है? देखो, बहुत से कारण है. पहला बात कि इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड. ओशंस आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर हाईली डायनेमिक. स्पेस में चीज़ें एम्प्टी हैं, वहाँ चीज़ें डायनेमिक नहीं है. तो स्पेस का मतलब ही है इट्स एम्प्टी. स्पेस हैज़ लॉट्स ऑफ स्पेस, बट इन ओशंस थिंग्स आर वेरी डायनेमिक. तुम 1 मीटर नीचे जाओगे तो कई यू कैन से मिलीबार के प्रेशर तुम्हारे ऊपर बढ़ते जाएगा. मोर यू गो डाउन द मोर द प्रेशर विल इंक्रीज, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो या, इवन प्रेफरेंस. ऐसा नहीं है कि ओशंस को खोज करना इट्स मोर एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है. मतलब हम लोग मार्स पर 600 मिलियन बर्बाद नहीं किए, रिसर्च के लिए खर्च कर चुके हैं. बट स्टिल नो ब्रो, तुम देख रहे हो ना, वहाँ हम लोग 600 मिलियन खर्च कर रहे हैं, और अपने ओशंस के लिए कितना चाहिए? नॉट मोर देन दैट. हर साल मार्स के लिए मिशन जा रहा है, बट टिल नाउ वी हैव ओनली 10% ऑफ फुल्ली मैप्ड ओशंस. प्रेफरेंसेस, इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस. हमारा प्रेफरेंस वो है नहीं. हम लोग मार्स को अर्थ बनाना चाहते हैं, जबकि अर्थ को अर्थ नहीं बनाना, उस अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं. आज इन्वायरमेंट डे है, राइट? हम लोग अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं और मार्स को अर्थ बनाना चाहते हैं. तो बेटर है कि अपने घर को ही सही करें ना, दूसरे जगह देखने से अच्छा. पहले इसको तो सही कर लो यार. सो या, चलो कुछ भी हो, आई एम नॉट द लेजेंड टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स. बहुत लोग हमसे स्मार्ट हैं, स्मार्ट इनफ है. ओके, सो जो करेंट रेजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मैपिंग है उससे सिर्फ 10%
10% डिटेल्ड एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल्ड मैप। या हम हो सकता है कि लो रेजोल्यूशन के मैप्स हों, दैट इज पॉसिबल हैं, लेकिन डिटेल्ड मैप जब भी बात होती है तो सिर्फ 10%, इवन लेस देन दैट हमारे ओशंस के अभी तक हम लोग जान पाए। ओके, 70% एरिया कवर कर रहा है, बट फिर भी 10% से कम हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैथीमेट्री। ये तो हो गया इंट्रो। व्हाट इज बैथीमेट्री? देखो, बैथीमेट्री को अगर इसको ब्रेक करो ना, तो ये आया है टर्म बैथोस और मेट्री से। बैथोस का मतलब होता है डेप्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ओशंस। ओके, सो डेप्थ मेजरमेंट ऑफ ओशंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर काउंटर पार्ट देखो लैंड पर, तो इसका काउंटर पार्ट होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज व्हाट? इट्स अ हाइट एबव द सी लेवल। किसी भी फीचर का हाइट अगर एबव सी लेवल मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। वी हैव टोपोसीट्स, जहां कंटूर लाइंस होते हैं। कंटूर लाइंस क्या होते हैं? द लाइंस हैविंग इक्वल एलिवेशन। तो इक्वल एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, दैट इज योर कंटूर लाइंस। उससे हम लोग टोपोग्राफी मेजर करते हैं, राइट? शेप, साइज, हाइट, ऑल दीज थिंग्स। Bathymetry, on the other hand, is basically a vertical depth from the mean sea level. It's a depth, and it is used to understand underwater valleys, sea floor, plains, underwater mountains, underwater features, any kind of features. For that, we need bathymetry charts, bathymetry maps. Okay. अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री। देखो, ये जो फर्स्ट मेजरमेंट का अटेम्प्ट हुआ था फॉर दीज ओशंस आर बेसिकली 85 BC, मतलब सोच लो बिफोर क्राइस्ट 85 में ये हुआ था। उस समय ग्रीक एक्सप्लोरर्स थे, उनमें से एक का नाम था पोसेडोइनस। ओके, उन्होंने बेसिकली कैसे साउंडिंग की थी? साउंडिंग इज अ टेक्निक टू मेजर डेप्थ। ओके, तो साउंडिंग की टेक्निक के लिए दे यूज दीज काइंड्स ऑफ रोप्स। रोप के लास्ट में वो लोग हेवी वेट लगा देते थे, और इस तरह से उन्होंने ओशंस के डेप्थ को मेजर किया रस्सी के जैसे कुआं को अगर मेजर करना है, सपोज कोई वेल है, उसको मेजर करना है तो रस्सी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इन द सेम वे ओशंस को मेजर किया, और इसी तरह उनको पता चला कि यस, देयर आर सम रीजन्स विच आर वेरी डीप, सम रीजन्स आर लाइक एबिशल प्लेन, सम रीजन्स आर लाइक ट्रेंच, सम आर सैलो लाइक कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पहले हम लोग को ये लगता था कि पूरा ओशन फ्लोर फ्लैट है, बट जब हम लोग ने साउंडिंग टेक्निक्स का यूज किया, वन ऑफ द फर्स्ट साउंडिंग टेक्निक्स जिसमें हम लोग रोप यूज करते थे, so in this way we come to know, no, it's a like a similar to the land counterpart। जैसे लैंड पर वैली, माउंटेन, फ्लैट रीजन्स होते हैं, वैसे ही इन द ओशन वी हैव सेम काइंड ऑफ थिंग्स। उस समय हम लोगों ने फैदम एक यूनिट को डेवलप किया, स्टैंडर्ड यूनिट। 1 फैदम इज समवेयर इक्वल टू 6 फीट। तो इस तरह से हम लोग रस्सियों से नापते थे। ओके, बट दिस इज नॉट अ डिटेल्ड एनालिसिस, दिस इज नॉट अ सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी कब होता है? 1872 में, 1872 में फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी HMS चैलेंजर एक मिशन था, उसमें हम लोगों ने पता लगाया अबाउट द डेप्थ्स, अबाउट द अंडर वाटर फीचर्स, एंड नॉट ओनली द फीचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द ओशंस। इसके बारे में हम लोग को तब पता चला। ओके, नाउ ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज स्टडीज, फाइनली वी कम टू नो दैट द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज 3729 meters. Okay, this is the average depth, while the deepest region is the Mariana Trench, around 11,000 meters. And if you see the land counterpart, the highest is Mount Everest, 8,850 meters. And the average elevation of land is only 840 meters. Average elevation का मतलब है कि जितने भी तुम्हारे हाई रीजन्स हैं उनको प्लेन कर दो। पूरे अर्थ पे जितने भी हाई रीजन्स और जितने डीप रीजन्स, हाई रीजन्स को के मट्टी को निकालो, डीप रीजन्स में डाल दो, और तब जो हाइट आएगा, एवरेज हाइट ऑफ द लैंड, दैट विल बी योर 840 मीटर्स। ओके, एक चीज और देखो, यहां दे रहा है परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। सो देख सकते हो कि जो एवरेज डेप्थ है 3729, इसके पास समवेयर क्लोज टू दिस वी हैव मैक्सिमम कवरेज। सो अराउंड 4000 मीटर सबसे ज्यादा कवर करता है। वैसे ही 840 मीटर का जो हाइट है एबव द मीन सी लेवल, ये सबसे ज्यादा कवर करता है एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। एक्चुअली में टोटल लैंड कवर करता है 29.2%। तो ये 29.2% कैसे हुआ? बाय एडिंग ऑल दिस। और ये 70.8% कैसे हुआ? बाय एडिंग ऑल दिस। ओके, तो मैक्सिमम यहां तुमको मिलेगा कवरेज। ओके, गॉट इट? ओके, 20 से 22% का जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन कवर करता है,
and continental margin is not a part of ocean, it is a part of continent only which is submerged under the ocean. ओके ये अंडर सबमर्ज है ओशन के. अब लाइक मार्जिन में सेल्फ स्लोप राइज होता है. अब एक चीज और याद रखो कि दिस कॉन्टिनेंटल मार्जिन कैन बी एक्टिव कैन बी पैसिव. ओके एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहाँ होंगे, ये एक फोटो हम दिखा देते हैं, देन वी कम टू नो. ओके सो जैसे ये देखो, ओके हियर यहाँ अगर तुम देखोगे दीज मार्जिन्स, अफ्रीका के मार्जिन्स, इंडिया के मार्जिन्स, दीज आर पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन. पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर वी हैव सेल्फ स्लोप राइज. बट जहाँ बात होती है एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की, एट दैट प्लेस देयर इज नो राइज. सो डायरेक्ट जैसे ये देखो साउथ अमेरिका के पास यहाँ एंडीज माउंटेन है, राइट. सो यहाँ सेल्फ आएगा, स्लोप आएगा, बट देयर इज नो राइज. सीधे आप सेल्फ स्लोप के बाद सीधे आप चल जाओगे ट्रेंच के अंदर. ओके एंड देन ट्रेन से इधर जाओगे तो यू विल गेट ओशन फ्लो. ओके सो ऑलवेज रिमेंबर, इन एक्टिव मार्जिन्स देयर इज नो rise, in passive margin there is continental self, slope and rise, all three. Okay, is this clear? Average height is 840 meters and average depth is 3729 meters. Okay, clear? Is this clear? Now moving to the next. अब साउंडिंग टेक्निक्स और समय के साथ डेवलप होने लगी. फाइनली इन 1900 वी हैव नाउ इको साउंडर. अब इको साउंडर क्या होता है, इसको फैदोमीटर भी कहते हैं. Important, fathometer is the another name of echo sounder. So this echo sounder is basically sends some sound signals. In sound signals को ping कहा जाता है, ping, ping. Okay, from the ship. अब जो ship होगा ना तुम्हारा, सपोज कोई रिसर्च व्हीकल है, उस रिसर्च व्हीकल के बेस में हम लोग लगा देते हैं ट्रांसड्यूसर्स, जिसमें ट्रांसमीटर्स होते हैं और रिसीवर्स दोनों होते हैं. ओके अब ये कंटिन्यूसली पिंग्स को छोड़ते हैं. ओके हम लोग जानते हैं कि पानी में साउंड तेजी से मूव करता है एज कंपेयर टू द लाइट, क्योंकि लाइट का एटोनुएशन हो जाएगा, इट गेट अब्जॉर्ब्ड, इट गेट स्कैटर्ड एंड लाइक दिस. हवा में लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि जो साउंड का स्पीड है ये 332 मीटर पर सेकेंड ही है. लेकिन जब पानी की बात होती है थिंग्स चेंज्ड. पानी में ये फास्ट मूव करता है साउंड. ओके दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको डेंसिटी बढ़ने पर मीडियम में ज़्यादा फास्ट होने लगता है, बट लाइट ऐसा कर नहीं पाता बिकॉज दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव. सो ये इको साउंडर्स बेसिकली साउंड पर बेस्ड होते हैं, ये पिंग्स को छोड़ते हैं. व्हेन दीज पिंग्स आर प्रोड्यूस इट गेट इंटरैक्ट और बाउंस ऑफ फ्रॉम रीजन्स ऑफ डेंसिटी डिफरेंस. जहाँ भी डेंसिटी डिफरेंस आएगा वहाँ से ये बाउंस ऑफ हो जाएगा. अब बैक टू फिर से वो शिप पे जाएगा, शिप में रिसीवर उसको रिसीव करेगा एंड इन दिस वे इट कैन कैलकुलेट द डेप्थ. अब तुम बोलोगे कैसे डेप्थ कैलकुलेट कर रहा है. सपोज कि यहाँ कोई शिप है, शिप में से साउंड निकला, प्रोड्यूस किया ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट होकर फाइनली यहाँ से टकरा के ये साउंड वापस जा रहा है. अब हम लोग ये तो जानते हैं ना कि साउंड का स्पीड जो ये होता है पानी में कितना होगा, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का हम साउंड सपोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका स्पीड वी नो. सो वी नो स्पीड, वी नो कि कितने देर बाद वो साउंड टकरा के आया. ट्रांसमीटर से निकला सपोज 1 सेकेंड पर और वापस आया तीसरे सेकेंड पर, यानी 2 सेकेंड का गैप. सो नाउ वी नो द टाइम डिफरेंस, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो द स्पीड. तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा. यही तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सो इस तरीके से तुम डेप्थ निकाल सकते हो. बट यहां एक चीज याद रखना, जितना स्पीड से वो साउंड, जितने स्पीड से वो साउंड नीचे जाएगा उतना ही स्पीड से वो ऊपर भी आएगा. और अगर टाइम 2 सेकंड लगा तो उसके आधे सेकंड में वो कवर करेगा ना हाफ डिस्टेंस. तुम से सोचो 2 सेकंड जो मैंने बताया, 2 सेकंड में वो मतलब 1 सेकंड में वो नीचे जा रहा है और 1 सेकंड में फिर से वो वापस आ रहा है, टोटल 2 सेकंड्स. तो यहां तुम टोटल 2 सेकंड्स को डिवाइड नहीं करोगे, t/2 कर दोगे, यानी एक ही सेकंड काउंट करोगे. तुमको तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, यहां से यहां तक के जाने का डिस्टेंस क्या है. तो यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब यहां से यहां तक जाने का टाइम पता चल जाए और स्पीड पता चल जाए. सो स्पीड विल बी से 400 मीटर पर सेकेंड. टाइम लगा टोटल 10 सेकेंड रिसीवर पे पहुंचने में, तो तुम क्या करोगे 5 कर दोगे, उसका हाफ टाइम लगा होगा नीचे जाने में. तो 5 × 200, 200 इज योर स्पीड एंड 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर्स डेप्थ होगा. हमेशा याद रखना टी को हाफ कर देते हैं.
क्योंकि टोटल टाइम हम लोग नहीं लेते, हाफ टाइम लेते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? यहां देख रहे हो तुमको मिल रहा है डीप स्कैटरिंग लेयर। इट सिंपली मीन्स कि हियर वी हैव समथिंग जो कि बाउंस बैक कर रहा है, डेंसिटी डिफरेंस है, जिसके कारण दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज रिफ्लेक्टिंग बैक, बाउंसिंग बैक। ओके, वी नो दिस। देखो, जो वाटर होता है ना, इट्स अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ साउंड। सो हम लोग यहाँ इकोस को फाउंड कर रहे हैं कि कितने देर बाद वो इको रिटर्न होकर हमारे कान में आ रहा है। जैसे हम लोग जब भी खाली रूम में चिल्लाते हैं तो इको वापस आता है, राइट, सुनाई देता है। इको के बेसिस पर तुम ये बता सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर जिसे वो टकरा के आ रहा है वो कितनी दूरी पर है। फिजिक्स में हम लोग ये रूल्स पढ़े हैं। तो इसी टेक्निक का यूज करते हैं ओशंस के डेप्थ को मेजर करने के लिए। सो दैट इज योर इको साउंडर। ओके, अब इको साउंडर के साथ प्रॉब्लम भी है। जैसे जैसे सपोज कि बहुत डीप ओशन है, 4000 मीटर, अब इको साउंडर जैसे जैसे नीचे जाएगा वो एरिया ऑफ कवरेज उसका बढ़ते जाएगा, क्योंकि इट मूव्स लाइक अ बीम ऑफ साउंड। जैसे जैसे जाएगा उसका रेडियस बढ़ते जाएगा डीप डाउन। सोचो कि एक यहाँ तुम्हारा सिप है, यहाँ से तुम इको साउंडर से तुम भेजे सिग्नल्स को। अब इट्स नॉट लाइक वो लाइट की तरफ फैलते जाता है, फैलते जाता है। तो सपोज कि यहाँ कोई सी माउंट है, ये पहले सी माउंट से टकरा के वापस चल जाएगा, इसको तो बहुत कम टाइम लगा। बट वही एक साउंड जो बहुत नीचे जा रहा है, एबिशल प्लेन तक जा रहा है, इट विल टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द सेम रिसीवर। सो इस तरह से तुमको एरर प्रोड्यूस होने लगेंगे। दिस इको साउंडर विल नेवर टेल यू कि तुम्हारा केमिस्ट्री क्या है, मतलब वो जो साउंड टकरा के आया वो मड से टकरा के आया कि सैंड से टकरा के आया, यू विल नेवर नो। ये वाइड एरिया ये नहीं दे सकता है। ये इको साउंडर बस तुमको डेप्थ का अच्छा नॉलेज देगा, वाइड एरिया कवरेज नहीं बताएगा। अंडर वाटर प्रोफाइल्स, तुमको डिटेल प्रोफाइल नहीं मिल पाएगा इस इको साउंडर से। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जिसके कारण इको साउंडर को बाद में फिर अपग्रेड किया गया। एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग सम अदर डिवाइसेस। जैसे ये देखो, ये हम लोग मल्टी बीम सोनार्स यूज करना शुरू कर दिए। सोनार इज बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो इन अ केस ऑफ मल्टी बीम सोनार्स, इंस्टीड ऑफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यहाँ हम लोग मल्टी बीम्स यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे इको साउंडर में एक फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रहा है, यहाँ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आर देयर। और ये basically these frequencies are when reflected back from the ocean floor, these receivers which is over here at the base of the ship is collected those signals, और उस सिग्नल्स को फिर हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। एंड इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट डेप्थ, शेप, इवन कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। यहाँ यही फायदा था, कंपोजिशन भी हम लोग जान सकते थे। अब देखो, जब भी शिप को डेटा डिटेल एनालिसिस करना होता है तो वो सेम एरिया में ऐसे ऊपर नीचे जाता है, ऐसे ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ मूव करता है, और इस तरह से वो सी फ्लोर की डीप बैथीमेट्री प्रोड्यूस करता है। ओके, वर्ल्ड वार 2 के टाइम में और इवन बाद में एक और नया हम लोग डेवलप किए, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन डेप्थ रिकॉर्डर। ओके, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ सोनार टेक्नोलॉजी। ये इसमें और मल्टीपल बीम्स हम लोग यूज करने लगे, मोर एंड मोर मल्टीपल बीम्स आर यूज्ड। अगेन इट इज अ मल्टी बीम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली। बट यहाँ वही हम लोग, अब सपोज कि हमको पता लगाना है मड, सैंड, क्ले, ऑल दीज थिंग्स, तो हम लोग हर के लिए, हर मटेरियल के लिए एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, वो उससे इंटरेक्ट करेगा। ऑर्गेनिक मैटर के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सो इन दिस वे अगर बहुत सी चीज़ें आ भी जाती हैं तो वो सारा डिटेल हम लोग को मिल सकता है। ओके, सो पीडीआर टेक्नोलॉजी बाद में आया था। देन मॉडर्न एकॉस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न एकॉस्टिक्स में वी हैव दिस साइड स्कैन सोनार्स and C beams, all these things are there. So this is an example of side beam sonar, side scan sonar. साइड स्कैन सोनार को क्या करते हैं कि हम लोग टो कर देते हैं सर्वे शिप से। दिस इज रिसर्च व्हीकल सर्वे शिप, इससे हम लोग इसको टो कर दिए हैं। ओके, और रस्सी से ये बांधा हुआ है और बहुत दूर डिस्टेंस पे बांधा जाता है ताकि इसके वाइब्रेशन से ये मशीन अफेक्ट ना हो पाए। जब भी शिप चलते हैं तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है ना उसके फिन से, तो इसको इसीलिए बहुत दूर रखा जाता है एंड डबल द लेंथ ऑफ द सीप। ओके, अगर ये 100 मीटर का सीप है तो एटलीस्ट 200 मीटर से दूर रखेंगे। ओके, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है साइड स्कैन सोनार में, देखो साइड स्कैन सोनार इज बेसिकली यूज्ड फॉर डीप ओशन स्टडीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी यूज दिस साइड स्कैन सोनार इंस्टीड ऑफ मल्टी बीम। मल्टी बीम से अभी हम लोग पता ही चल गया कि इट विल गिव यू मोर डिटेल्ड मैप
देन वाई साइड स्कैन सोनार? साइड स्कैन सोनार में देखो बेनिफिट है, जैसे अगर तुम मल्टी बीम यूज़ कर रहे हो, वी नो जो मल्टी बीम्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल से जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होता है, सैंड से, मड से, इट विल देन रिसीव्ड एट रिसीवर, इन दिस वे इट विल जनरेट द डेटा, एंड उस डेटा को फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करके हम लोग पूरा हाई क्वालिटी इमेज डेवलप कर लेते हैं उस एरिया के सी फ्लोर का, मतलब बेसिकली प्रोफाइल डेवलप कर लेते हैं। बट यहाँ डिमेरिट ये है कि these मल्टी बीम सोनार्स यूज बीम ऑफ साउंड विच स्प्रेड्स विद डेप्थ। जैसे जैसे नीचे जाएगा वो स्प्रेड होने लगेगा, ओके उसका वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग मल्टी बीम सिस्टम हैव रेजोल्यूशन लिमिटेशन, इसका रेजोल्यूशन बहुत ही गंदा आएगा। ऐसा नहीं कि मल्टी बीम सोनार डीप ओशंस का नहीं दे सकता, बट वही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, छोटा छोटा चीज तुमको अगर देखना है, सपोज मैग्नीज नोड्यूल्स का स्टडी करना है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, नो, तो उसके लिए तुमको चाहिए साइड स्कैन सोनार्स। ये जो मल्टी बीम सोनार्स होते हैं इसके केस में वी नीड, अगर स्टडी करना है सपोज सी माउंट का स्टडी करना है, देन वी कैन गो फॉर इट। बट जब तुमको बहुत माइन्यूट चीज़ों की स्टडी करनी है तब तुमको साइड स्कैन सोनार यूज करना पड़ेगा, ओके। सो इन द डीप वाटर वी यूज दिस साइड स्कैन सोनार, so for detailed survey, okay, so basically this side scan sonar enhances the view of sea floor, okay. So in this side scan sonar the instrument is towed behind this survey ship, okay, and in this way it will maximize the resolution, क्योंकि इसको देखो जस्ट एबव द सी फ्लोर हम लोग ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है। हमारा जो मल्टी बीम सोनार था वो एग्जैक्टली ऑन द मीन सी लेवल था। मीन सी लेवल में सपोज कि ये जो शिप है ये 5 मीटर या 10 मीटर नीचे डीप में है, इसके हल पर हम लोग लगा दिए हैं मल्टी बीम सोनार। सो ये इसको कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सी इतना डेप्थ है, 4 किलोमीटर के डेप्थ के सामने 10 मीटर बहुत छोटा है, हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि मोस्टली ये सी लेवल से ही मेजर कर रहे हैं। बट यहाँ हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको कितने नीचे लेके जा सकते हैं। मोर क्लोज होगा अगर वो उतना ही अच्छा डेटा देगा ना। सो टू मैक्सिमाइज द रेजोल्यूशन ऑफ साइड स्कैन सोनार इट कैन बी लोअर्ड थ्रू द केबल्स। इसको केबल से हम लोग लोअर कर सकते हैं। मल्टी बीम सोनार में ऐसा केबल सिस्टम नहीं है, इट इज कनेक्टेड टू द सी। सो वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाता है रेजोल्यूशन का, ओके, पिक्सल साइज का, स्पेशियल रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है। यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखो ये जितने भी टेक्निक्स हैं, साइड स्कैन सोनार या सी बीम, ये तुमको बहुत डिटेल तो एनालिसिस दे सकता है, डिटेल प्रोफाइल बना के दे सकता है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग होते हैं। अब सोचो, मैंने एक अभी रिसर्च देख रहा था, रिसर्च पेपर, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च पेपर वी नीड एट लीस्ट $200 बिलियन टू दिस थिंग हाई रेजोल्यूशन डेटा ऑफ ओशंस। $200 मिलियन हम लोग को चाहिए, तब जाकर हाई रेजोल्यूशन डेटा बनेगा। और वो भी कब बनेगा? जब बहुत सारे शिप्स एट अ सेम टाइम स्टडी करें ओशंस का। 70% ऑफ एरिया ओशंस है, राइट। उसको स्टडी करने के लिए एक शिप करोगे तो टाइम लग जाएगा, ओके। तो थाउजेंड ऑफ शिप जब काम करे तब जाकर बाय 2030 we can generate the high resolution data of entire oceans, okay, so yeah that's the thing। तो इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या किए कि टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करने लगे इस सेटेलाइट्स, ओके। सेटेलाइट्स में हम लोगों ने लगाया सेंसर्स। सेंसर में हम लोग कौन सा सेंसर यूज करते हैं? अल्टीमीटर्स, ओके। नाउ अल्टीमीटर्स का क्यों यूज होता है एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमीटर बेसिकली? सो देखो, अल्टीमीटर एल्टीट्यूड को बताता है कि कोई भी वाटर सरफेस से वो सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर है। सोचो कि कोई सैटेलाइट हम लोग भेजें ऑर्बिट में जिसकी ऊंचाई है से 700 मीटर, 700 किलोमीटर, नॉट मीटर, 700 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अब देखो हमारा जो ओशन सरफेस होता है ना, इट इज नॉट अ फ्लैट। ओशन सरफेस फ्लैट नहीं है। हम यहाँ वेव्स और टाइड्स की बात हटा रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। वेव टाइड्स आर वेरी स्मॉल फीचर्स। जब हम लोग पूरे सरफेस को देखेंगे वहाँ चीज़ें फ्लैट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहाँ अफेक्ट करता है। अब सोचो कि ओशन के नीचे सपोज देर इज अ वेरी ह्यूज सी माउंट जिसका रेडियस है से 50 किलोमीटर का,
ओके, जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, सी माउंट, यानी वो सी माउंट के कारण आसपास के वाटर पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। ओके, और एक रीजन है ट्रेंच, जहां डिफिशियंसी ऑफ मास है। ट्रेंच आर डीप रीजन्स, वहां बहुत पतला ये होता है ना, ओशन का क्रश, ओशियानिक क्रश बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, तो वहां डिफिशियंसी ऑफ मास है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां कम लग रहा है। सो जो वाटर होता है, चूंकि वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इट मिमिक्स द अंडर वाटर टोपोग्राफी। यहां देखो, यहां डीप वाटर है तो यहां पानी भी डीप हो गया है। ओके, दिस ये थ्योरेटिकल ओशन सरफेस है, दिस इज आवर थ्योरेटिकल ओशन सरफेस। दिस इज द एनामोली। एनामोली मतलब डिफरेंस मेजर्ड, जो कि डिफरेंस जो कि हम लोग मेजर कर रहे हैं और जो थ्योरेटिकल है उसके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड सी सरफेस एनामोली। तो दिस इज आवर सी सरफेस एनामोली। तो ये सी सरफेस एनामोली कैसे जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट सेम, हमेशा याद रखना। ये देखो, ये फोटो, यहां हम लोग का ट्रेंच है, दिस इज ट्रेंच, दीज आर ट्रेंच। ये ब्लू कलर तुमको दिख रहा है, बी, यहां देखो ब्लू कलर रीजन में निगेटिव ग्रेविटी एनामोली आ रही है, बिकॉज हियर वी हैव डिफिशियंसी ऑफ मास। लेकिन ये कलर्स देखो, ये रेड वाले, ये ऑरेंज वाले, ये देखो यहां हम लोग का क्या है, मिड ओशियनिक रीज, दिस इज द मिड ओशियनिक रीज, दिस इज मिड अटलांटिक रीज, यहां मिड अटलांटिक रीज है। तो ये रीजेस पर क्या है, एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है ना, ओशन फ्लोर वहां थिक है, वहां ओशन ज्यादा डीप नहीं है, सैलो है, यानी मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होने से पॉजिटिव ग्रेविटी एनामोली आ रही है, तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहां देखो मास ज्यादा है, इसलिए वाटर को सब तरफ से पाइलअप कर रहा है। सो इट सिंपली मिमिक्स द अंडर वाटर टोपोग्राफी। ओके, सो इसके बेसिस पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि अंदर सब सरफेस पे क्या है। और आजकल का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड है, आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा कि इवन इफ हम लोग इतने छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों को कैसे पता लगा लेते हैं, उस पर हम बताएंगे एक दूसरा वीडियो में। ओके, अब यहाँ देखो कि अब रडार अल्टीमीटर कैसे काम करता है। रडार अल्टीमीटर जिस भी सैटेलाइट में लगा है ये सेंसर, वो सैटेलाइट कंटिन्यूसली घूम रहा है, और मोर देन वन सैटेलाइट्स भी है, बहुत सैटेलाइट कंटिन्यूस सी सरफेस की स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये अगेन यहां से लाइट वेव्स छोड़ा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट्स नॉट साउंड वेव्स, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सो वी नो कि वेलोसिटी, वी नो वेलोसिटी इतना है, बट व्हाट अबाउट टाइम? अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि हम लोगों ने लगाया था पहले इको साउंडर्स में, सेम कॉन्सेप्ट, हाफ ऑफ टाइम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड, देन वी गेट डिस्टेंस। इस तरह से हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके, कि कितने ऊंचाई पर है। इन रियलिटी देखो, ये जो डिस्टेंस बताएगा वो एनामोली डिस्टेंस बताएगा ना। हम लोग को तो जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम लोग को तो ये मालूम होता है कि हम चलो 700 किलोमीटर की ऊंचाई के इस पे डाल रहे हैं, ऑर्बिट में डाल रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट ये 700 किलोमीटर का ऊंचाई थ्योरेटिकल ओशन सरफेस से है, इट्स नॉट एनामोलस सी सरफेस। ये 700 किलोमीटर का ऊंचाई एनामोलस सी सरफेस से नहीं है, थ्योरेटिकल वाले से। लेकिन अब ये सैटेलाइट तो पूरे ओशन से पास कर रहा है, तो वो वैसे रीजन्स के भी ऊपर जाएगा जहां सी फ्लोर में मास कम है, वो वैसे रीजन्स के ऊपर भी जाएगा जहां बड़े बड़े सी माउंट्स हैं। तो इस तरह से वहां का पैटर्न सरफेस का बदलेगा, और इस तरह से वो पता लगा लेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। हमको रहना चाहिए था 700 किलोमीटर, बट अब आ रहा है थोड़ा सा 5 मीटर लेस, 700 किलोमीटर में 6 मीटर लेस। तो इस तरीके से हम लोग सब सरफेस पता लगा लेते हैं, डेटा मिलता है, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और फाइनली वी कम टू नो अबाउट दिस। अब जैसे ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, सीप बैथीमेट्री का कमाल है, और दिस इज सैटेलाइट बैथीमेट्री, सैटेलाइट बैथीमेट्री। ओके, बट अगेन हमारा सी बैथीमेट्री इससे भी देखो, ये तुम्हारा ज़्यादा तुमको लग रहा होगा कि ये बेस्ट वर्जन है ऑफ मैपिंग, बट स्टिल ये जो भी सीप बैथीमेट्री तुम देख रहे हो, ये इको साउंडर्स के डेटा है, इट्स नॉट द डेटा ऑफ यू कैन से मल्टी बीम सोनार्स और साइड स्कैन सोनार। साइड स्कैन सोनार का इससे भी ब्रिलियंट आएगा टोपोग्राफी, एकदम माइन्यूट चीज़ों को देख सकता है। ओके, बट अभी हमारे पास जो भी डेटा है ना, ग्लोबल डेटा, बैथीमेट्री, सीप बैथीमेट्री ग्लोबल डेटा, वो ज़्यादातर इको साउंडर्स के ही हैं। हम लोग उसी रीजन्स में ये यूज़ करते हैं जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली वाइएबल जोन्स हैं, वहीं हम लोग ये डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। दिस इज नॉट द डिटेल्ड वन, मतलब
सेटेलाइट से भी ज़्यादा डिटेल सी बैथमेट्री दे सकता है, बशर्ते उस रीजन में हम लोग यूज़ करें व्हाट वी यूज़ दिस मल्टी बीम सोनार्स एंड दिस साइड स्कैन सोनार, समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ें। एंड एनामोली क्लियर है, तो जहाँ भी मास ज़्यादा होगा वहाँ हम लोग को पॉजिटिव ग्रेविटी एनामोली, नेगेटिव एनामोली जहाँ डिफिशियंसी होगा। ओके, नाउ ये स्टडीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वाई बैथीमेट्री चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द फर्स्ट प्लेस। पहला, तुमको ये मालूम होगा कि जो भी हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं 90 से 95% इंटरनेट अंडर वाटर केबल से चलता है, सी केबल्स के थ्रू चलता है। ओके, तो हम लोग को ऐसे रीजन्स चाहिए होते हैं जो कि टेक्टोनिकली इनएक्टिव हो, जो रीजन्स में वोल्केनिक इवेंट्स, अंडर वाटर वोल्केनिक इवेंट्स ना आते हो। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए ना प्रॉपर मैप्स, तभी तो हम लोग वहाँ ये सी केबल्स बिछा पाएंगे। पहला ये, क्योंकि ये इट्स अ कनेक्टिविटी, ये सारा कनेक्टिविटी यही दे रहा है। सेकेंड चीज, क्लाइमेट मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना। सी ओशन सरफेस का बिहेवियर क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है। ओके, जैसे कि तुमको बताए होंगे कि अल्नीनो के टाइम में या नॉर्मल लानीना के टाइम में, लानीना ही देख लो, लानीना के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पास जो वाटर लेवल होता है वो ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है कंपेयर टू पेरू चिली कोस्ट। पेरू चिली कोस्ट में नीचे होगा पानी और इधर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दीज स्टडीज विल गिव यू डेटा अबाउट दिस क्लाइमेट प्रेडिक्शन, क्लाइमेट मॉडल, इन सब के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलती है। देन हम लोग जानते हैं कि ईच ईयर वी हैव लॉट्स ऑफ दिस थिंग, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम लोग को अगेन एक्सीडेंट से बचने के लिए, कोई भी डिजास्टर से बचने के लिए, ओशन डिजास्टर से बचने के लिए मैप्स उनके होने जरूरी हैं। ट्रेड होने के लिए मैप्स जरूरी हैं। ओके, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना एंड ऑल। देन डीप सी माइनिंग। अब देखो मैग्नीज नोड्यूल्स में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थ सरफेस पे बहुत माइन्यूट है, बट वहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत है। ओशन के अंदर सारे एलिमेंट्स, ऑल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी टू हार्नेस देम। अगर टेक्नोलॉजी है भी तो वो इकोनॉमिक नहीं है। ओके, सो या दिस इज द थिंग्स जिसके कारण ये बैथमेट्री स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू वांट डिटेल्ड वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक्स काइंडली सजेस्ट मी। ये वीडियो के लिए राजा ने सजेस्ट किया था। एंड अगेन हम बोल रहे हैं कि मेरा जो वेबसाइट है ये इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, सो बेटर यू विल बाय राइट नाउ। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल चीज़ ला रहे हैं वेबसाइट पर। So till then, stay tuned, stay curious. Bye.